گلستان کے گراؤنڈ رپورٹ کے اس شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں عادل شہنواز. ناظرین, آج ہم گراؤنڈ رپورٹ کے اس شمارے میں بات کریں گے جو پلوامہ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ایک پروگرام چلا گیا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا پلوامہ بیوٹیفیکیشن. تو پلوامہ بیوٹیفیکیشن میں کتنا کام ہوا ہے, کتنا ابھی مکمل نہیں ہوا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. تو پہلے آپ کو بتائیں جو پلوامہ بیوٹیفیکیشن ہے اس میں کئی سارے پروجیکٹس رکھے گئے تھے جن میں کلاک ٹاور, فٹ پاتھ, چلڈرن پارک یا جو دوبی کال ہے اس کی صفائی کا جو پروگرام وہ بھی چلایا گیا تھا. جو ٹاؤن میں جو واش رومز ہے وہ پروگرام رکھا گیا تھا. جو اسٹریٹ لائٹس ہے وہ بھی رکھے گئے تھے. اگر بات کریں ان میں سے کئی سارے مکمل ہوئے ہیں, لیکن ابھی جو کافی جو ایسے پروجیکٹس بھی ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. تو آج اس گراؤنڈ رپورٹ میں جو ہمارے یہاں سے ٹریڈ سے وابستہ لوگ ہیں یا ایڈمنسٹریشن سے وابستہ لوگ ہیں یا جو عام لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے اس پروگرام کے حوالے سے. تو پلوامہ بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی جڑے ہیں جو ٹریڈ سے وابستہ ہے یہاں پہ, تو ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو پروگرام چلایا گیا تھا پلوامہ ٹاؤن کو خوبصورت بنانے کے لیے تو کتنا کام ہوا, اس پہ کون سے کام مکمل ہوئے ہیں, کون سے ابھی تک جو ہے پائی تکمیل تک نہیں پہنچائے گئے ہیں. تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں پہ ہے جو ٹریڈ سے وابستہ لوگ ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. تو روپ صاحب یہ بتائیں جو پلوامہ بیوٹیفیکیشن پروگرام چلا گیا تھا تو کہیں سارے پروجیکٹ اس میں لیے گئے تھے, کہیں جو انکمپلیٹ ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میرے بھائی جان, جو لاسٹ ٹائم یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن نے بیوٹیفیکیشن آف ٹاؤن کا ایک سٹیپ اٹھایا تھا وہ بہت ہی اچھا اور بڑھیا سٹیپ دیکھنے کو ہمیں مل گیا تھا. اگر دیکھا جائے اس میں کچھ پروجیکٹس پہ انہوں نے کام کیا, لیکن پہلے میں انہی پروجیکٹس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں ضلعی ایڈمنسٹریشن کے آپ کی مادھیم سے یہ بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کام ابھی تک کیا اس ٹاؤن میں. اس میں سب سے پہلے سٹیپ انہوں نے کلاک ٹاور کا کیا تھا. مین مارکیٹ میں ایک انہوں نے کلاک ٹاور کنسٹرکٹ کیا تھا, لیکن جس نام سے اس کو جانا جاتا ہے کلاک ٹاور, پہلے اس میں کلاک لفظ آ رہا ہے. پچھلے 1 سال سے اس میں کلاک ہی انسٹال نہیں ہوا. یہ سب سے بڑی خامی ہے اس میں. پھر دوسرا سٹیپ انہوں نے اٹھایا تھا فٹ پاتھ. بہت ہی اچھا سٹیپ تھا, لوگوں کو فائدہ اس سے مل رہا تھا تاکہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو جائے مارکیٹ میں. ایک سائڈ سے لوگ چلے, دوسری سائڈ سے گاڑی چلے. اس میں کیا دقت میرے لحاظ سے ہے, اس میں سب سے پہلے دقت یہ ہے وہ آکوپائڈ بائی وینڈرز ہوئے ہیں. اور کن وینڈرز نے ان فٹ پاتھ کو آکوپائی کیا ہے. اس میں ایک تو ہوتا ہے وہ ریڑھی چھاپڑی والا اگر بیچارہ صبح ریڑھی چھاپڑی لگاتا ہے تو وہ موو بھی کر سکتا ہے. لیکن اس میں انہوں نے کن لوگوں نے آکوپائی کیا, ایک مافیا یہاں پہ کام کر رہا ہے, وہ ہوتے ہیں وہ آٹو والے, وہ لوڈ کیریئر ہیں. سرکار نے جو بھی کوئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے اس کا ایک اپنا نیریٹو ہوتا ہے, ایک اپنا پرپز ہوتا ہے. دیکھیے جو وہ لوڈ کیریئر آٹو والے ہیں ان کا کام ہوتا ہے جو دکانداروں سے ایک جگہ دوسری جگہ مال پہنچانا ہوگا اس کے لیے وہ کام کرے. لیکن انہوں نے کیا کیا, صبح وہ مارکیٹ میں آتے ہیں 9 بجے, آٹو لگا رہے ہیں اور 20 سڑک میں وہ آٹو جما رہے ہیں شام 10 بجے تک. اس کے عوض میں آپ دیکھیے دوسرا جو دکاندار ہوتا ہے وہ اپنا 10 لاکھ یا 20 لاکھ پکڑی دے کے دکان پہ بیٹھ رہا ہے. شام کو وہ 500 روپے نہیں کما رہا ہے. آٹو والا 2 لاکھ میں آٹو لا کے بیچ مارکیٹ میں کھڑا کر رہا ہے. جو یہاں کا مین ریزن ہے, پچھلے میں جب بھی مجھے جہاں مجھے موقع مل رہا ہے کہ یہاں پہ ٹریفک جام کیوں ہو رہا ہے, میں اس پوائنٹ کو میں ہمیشہ ریز کر رہا ہوں. مین ریزن یہاں پہ ٹریفک جام ہونے کا یہی آٹو والے ہیں, کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ بیچ سڑک پہ آٹو لگا رہے ہیں, مین روڈ پہ آٹو رہ رہے ہیں, جن کی وجہ سے یہاں بہت بڑا ٹریفک جام ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بولا تھا فٹ پاتھس کے بارے میں. آپ دیکھیے پورا آپ سروے کیجئے فٹ پاتھس کے. ان کی جو یہاں کے لوکل ایڈمنسٹریشن کے لوکل ڈپارٹمنٹس ہیں, RNB ہے, MC پلوامہ ہے یا باقی ادارے ہیں, ان میں بہت کارڈنیشن کی کمی دکھ رہی ہے. کارڈنیشن کی کمی کس وجہ سے دکھ رہی ہے, جو دیکھیں آپ ان کا دیکھیں PDD والوں کا, انہوں نے پول لگائے ہیں. جو یہاں کے فٹ پاتھس بنے ہیں وہ پول ان کے پیچھے ہونے چاہیے, وہ آگے لگے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی بندہ چل رہا ہے تو اس کو پول اور فٹ پاتھ کے بیچ میں
तिरछी करके निकलना पड़ता है। रहा दूसरा सवाल एडवर्टाइजमेंट बोर्ड का। एडवर्टाइज बोर्ड भी लगे हुए हैं मेन मार्केट में। पिछली बार भी हमने वक्तन फवक्तन इनको इतला दिया है कि यहाँ आपको खामी हुई है, इसको ठीक करें, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे। आपकी वसादत से मैं यहाँ की ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, हम इन डिपार्टमेंटों के पास वक्तन फवक्तन गए, PDD के पास भी गए, MC वालों के पास भी गए, इनसे हमने वक्तन फवक्तन कहा। ज़ेर सदारत हमने 3-4 बार हमने वफद उठाई, ज़ेर सदारत मोहम्मद अल्ताफ़ कार के साथ हम गए। वहाँ हमने इनको वक्तन फवक्तन समझाया कि आपने इतना पैसा खर्च किया, ये यहाँ के लोगों का पैसा है, ये यहाँ के गरीब आवाम का पैसा है, आपने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया, अच्छा बात है, अच्छी बात है, हम खुश हैं इससे, हम मुतमईन हैं। लेकिन आप लोगों ने जिसके लिए ये पैसे खर्च किया था वो फ़ायदा हम उससे नहीं उठा रहे। फुटपाथ उन्होंने लोगों को चलने के लिए, पैदल रास्ते चलने के लिए किया, कोई भी नहीं उस पर चल पा सकता है, क्योंकि उसमें 3-4 प्रॉब्लम्स है। हमने अपनी आंखों से देखा है। परसों आज से लगभग 2-3 महीने पहले मेन मार्केट क्लॉक टावर के सामने आप वो एडवर्टाइजमेंट बोल रहे थे, 6-7 साल का बच्चा चल रहा था, उसकी नज़र नीचे थी, जब वो सामने चल गया था, वो जो एडवर्टाइज बोर्ड में उसका जो कोना है वो बाहर है, उसका सर फट गया। फिर मैंने उसको उठाया, हॉस्पिटल लिया। फिर अगले दिन मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब को बोला कि ऐसी प्रॉब्लम हुई मार्केट में। हमने वफद उठाई, फेडरेशन के भी वफद उठाई, हमने बाकी यहाँ की जनरल पब्लिक की वफदे भी हमने उठाई, और हम म्युनिसिपल EO साहब के पास गए। EO साहब ने उस वक्त पूरी 2-4 मुलाजिमों को हमारे साथ भेजा, लेकिन तब से आज तक 4 महीने कोई उस पर काम नहीं हुई। फिर रहा तीसरा सवाल, इन्होंने उस ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन में एक प्रोजेक्ट ये भी रखा था कि हम ब्यूटिफिकेशन ऑफ दोबीकल करेंगे। अगर दोबीकल की बात करें तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पहले भी आ चुके थे, काफ़ी पैसा भी आया था उसको सफाई करने के लिए या उसकी जो ब्यूटिफिकेशन करने की। क्या उस पर कुछ काम हुआ, क्योंकि एक फेमस स्ट्रीम है पुलवामा की, क्या इस पर कुछ काम हुआ है? आप तो बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि दोबीकल पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। दोबीकल से पहले मैं आपका अटेंशन दूसरी चीज़ तक लेना चाहता हूँ। जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन में मेन चीज़ होता है, वो जो डिवाइडर है हमारे मेन मार्केट में, वो फ्लोरिकल्चर के अंडर आ रहा है। आप देखिए उसकी हालत। परसों उन्होंने उसमें पौधे लगाए, शाम को वहाँ कुत्ते सो रहे थे उस डिवाइडर पे। उनको हमने पिछली बार भी बोला था कि आप इसमें एक काम कीजिए, ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन, अगर हमारा टाउन खूबसूरत दिखना चाहे तो आप इसमें साइड से वो जंग जो तार होती है वो खड़ा कीजिए, ताकि इसमें कुत्ता न अंदर बैठ सके, और जो पौधे आप लोगों ने लगाए ये अच्छी तरीके से बड़े हो जाए, और फिर इसमें ब्यूटिफिकेशन भी दिखेगी डिवाइडर में। तो क्या लगता है आपको, अगर सक्सेस माना जाए ये प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है ब्यूटिफिकेशन? मेरे हिसाब से 10% तो सही है, 90% अभी इसमें कामयाबी नहीं हुई इनकी। तो पुलवामा ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है। हमारे साथ जुड़े हैं जनरल सेक्रेटरी जो पुलवामा ट्रेड फेडरेशन है, मोहम्मद अल्ताफ़ कार साहब। तो इनसे भी जानेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से कितना सक्सेस रहा है ये प्रोग्राम। तो अल्ताफ़ साहब ये बताइए। जनाब, आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट तक ये बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का ये इंस्टीट्यूट अच्छा था, मगर कुछ पता नहीं वो उनका किसका ये अप्रोच है पीछे से, या बीच सड़क में वो लोग ऑटो खड़ा करते हैं, या गवर्नमेंट की भी कुछ आपस में तालमेल है नहीं इनको, क्योंकि आपस में अगर डिपार्टमेंट मिल जाएंगे कैसे कहाँ पे काम कैसे करना है, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट का है, आम गवर्नमेंट का, ये पैसा लोगों का है, ये आम लोगों का पैसा है, क्योंकि इसमें ये होने चाहिए खर्च अच्छे लोगों के लिए। मगर वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि पता नहीं कहाँ से ऑटो 30-40 ऑटो वहाँ पे ऑक्यूपाई किया उन्होंने, सारा सड़क वो बंद करती है। जाम का भी रीज़न यही है। आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस पर कुछ कदम उठाएं ताकि यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम हल हो जाए। तो कई प्रोग्राम चलाए गए थे इस ज़िम्मन में। चिल्ड्रंस पार्क भी एक इशू था कि चिल्ड्रंस पार्क को कहीं पे बनाएंगे, जिसके लिए कुछ बात कीजिए। जो हमारा ईदगाह है जदीद, उसमें भी कुछ प्रपोजल आए थे, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? गवर्नमेंट के पास लैंड, अगर गवर्नमेंट मालिक है, गवर्नमेंट यहाँ पे लैंड बहुत सारे हैं जो क्या घास चराई के नाम से हम, गवर्नमेंट के पास है ऑप्शन, ये कहीं भी बना सकती है, यहाँ पे है ऑप्शन। अलबत्ता गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टेड नहीं ले सकती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है। मेरे हिसाब से अगर आपके माध्यम से मैं डी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये इनिशिएटिव भी ले जाए, ताकि है हमारे पास ज़मीन। तो गारबेज, अगर बात करें गारबेज डंपिंग साइड यहाँ पे
अच्छी जगह पे नहीं है। लोग परेशान हैं क्योंकि जो पूरा जो टाउन है, जो इससे गार्बेज निकलता है, वो सारा डंप होता है सर्कुलर रोड पे, जिससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे चलने। वहाँ पे डिग्री कॉलेज भी है, तो इसके हवाले से आपका क्या कहीं पे होना चाहिए अच्छी तरह से डंपिंग साइट? 2 साल से हम यही मांग कर रहे हैं कि प्लीज़ वहाँ पे वहाँ से 3-4 महल्ले वहाँ पे रहते हैं, और हमारे दुकानदार भी उसी सर्कल रोड पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, जिनको बहुत दुश्वारी होती है वहाँ पे बैठने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट, हमने डी साहब से भी बात की थी, डी साहब से हमने 3-4 बार बात की थी। डी साहब ने हमें अश्योरेंस दिया था कि बस विद इन डेज़ में हम ये पूरा करेंगे, क्योंकि हमने ज़मीन कहीं पे ले ली है। तो अब समझ नहीं आ रहा है ये म्यूनसिपलिटी की कमी है या डीसी साहब, पता नहीं डी साहब ने कितनी बार हमें एश्योरेंस दिया कि विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स में हम इसको करेंगे, क्योंकि ये मुगल रोड, ये तो मुगल रोड के नाम से जाना जाता है पूरा अच्छा रोड। जो भी राजौरी से या कहीं और से आता है, श्रीनगर से कोई आता है या राजौरी जाने के लिए यही रोड वो इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे इतनी बदबू हो रही है, इतनी बदबू आ रही है कि कहने की बात ही नहीं है। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, प्लीज़ आप, आज माह शाम का ये महीना चल रहा है, प्लीज़ आप इस पे इनिशिएटिव ले जाओ, और ये आप जहाँ पे आपके पास ज़मीन पड़ी है, चाहे न्यूआ में है कहीं और पे, इसको आगे कर दो। तो एक और मसला है जहाँ पे लोगों का, वो है स्ट्रीट लाइटिंग का। अगर पिछले कुछ दिनों के पहले बात करें तो जो म्यूनसिपल काउंसिल, उनका ये कहना था कि हमने स्ट्रीट लाइट को यहाँ पे रेस्टोर किया है, काफ़ी सालों बाद, 10 साल बाद यहाँ पे रेस्टोर किए। क्या आपको लगता है वो काफ़ी है? जी आदिल साहब, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि स्ट्रीट लाइट पे थोड़ा सा काम कुछ चला था, 1-2 दिन 3 दिन में उन्होंने काम चलाया, क्योंकि 1 साल से हम इसके पीछे हैं, 2 साल से हम इसके पीछे कि स्ट्रीट लाइट पे आप, अगर डी साहब ने हमें वहाँ पे ये भी दिखाया था एक बार कि उस पर ट्रांस, ये क्या बोलते हैं इसको, या ठीक करने के लिए उन्होंने पैसे भी उसमें किए थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रिलीज़ भी पैसे किए थे, मगर आज तक दिखा नहीं। थोड़ा सा कुछ उन्होंने किया था, पता नहीं, पीछे हमारे चेयरमैन साहब से भी बात हुई थी, थोड़ा सा उन्होंने किया था, अलबत्ता पूरा भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट पे भी पूरा काम हुआ है। तो आखिर में जानेंगे, जो पुलवामा ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम चलाया था, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए थे, काफ़ी मुकम्मल भी हो, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो अभी इनकम्प्लीट है। क्या आपको लगता है ये प्रोग्राम सक्सेस रहा है उतना जितना ये कह रहे हैं? अभी हम सक्सेस इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है। जो भी काम अभी पेंडिंग है, ये गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, डी साहब से अपील करते हैं कि वो क्लियर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोग, हम नंबर 1 आते हैं टैक्स में, पूरे जिस स्टेट में हम पुलवामा नंबर 1 आता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, प्लीज़ इस पर आप पूरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये पैसे यूटिलाइज कर जाए, ताकि ब्यूटिफिकेशन का कोई नाम अच्छा हो यहाँ पे। तो जैसे कि आपको पता है कि इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने बात की है, जो पुलवामा ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम है उसके हवाले से हमने बात की। तो इस पे मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जो मुसद्दिक रियाज़ है, पुलवामा से इनका ताल्लुक़ है, और एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो इनसे जानेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। तो मुसद्दिक, पहले आपका गुलिस्तान में खैर मकदम है। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए अपनी चैनल में। तो मुझे ये बताए, जो पुलवामा ब्यूटिफिकेशन एक प्रोग्राम रहा है पुलवामा के लिए, पुलवामा को खूबसूरत बनाने के लिए, तो आपको क्या लगता है किस हद तक ये कामयाब रहा है? देखिए, अगर हम पुलवामा की ब्यूटिफिकेशन के बारे में बात करें तो पिछले सालों के बावजूद पुलवामा में काफ़ी विजिबल चेंज देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पे लोगों को चलने फिरने में बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था, उसी सिलसिले में जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने फुटपाथ से यहाँ पे लगवाए। उसके साथ साथ जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लोगों की, रात को दिक्कत होती थी चलने फिरने में, दुश्वारियाँ पैदा होती थी जिन लोगों को, जो लोग रात को सफ़र कर रहे थे या जिनको हॉस्पिटल जाना होता था या किसी काम के लिए जाना होता था। पुलवामा पूरे एक डार्कनेस में मुब्तला था। अगर हम बात कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही पुलवामा में, मैं पूरे पुलवामा में नहीं कहूँ कि मोस्ट प्रोबेबली जो एरिया है वो कवर किया गया, उनमें स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल की गई है। ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर हम ब्यूटिफिकेशन की बात करें, अगर पहले हमें लोगों की सहूलियातों का ख्याल रखना होता है, फिर जब लोग अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की सहूलियात हासिल करेंगे जिनसे उनकी लाइफ में ईज़, एक प्रॉपर ईज़ हासिल होगा, तभी हम ब्यूटिफिकेशन की बात करें।
अगर हम देखेंगे कि बहुत सारी दिक्कतें अभी भी लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जैसे अगर हम देखें कि पुलवामा की एक ऐसी फेस पे डंपिंग साइड लगाई गई है कि अगर हम देखेंगे कि उस रोड पे जिसका नाम सर्कुलर रोड है, वहाँ से अगर हम देखें जो सालाना टूरिस्ट्स आते हैं पीर गली या मुगल रोड की और उनको पुलवामा का वो इम्प्रेशन पड़ता है, वो एक गलत इम्प्रेशन पुलवामा का क्रिएट करती है टूरिस्ट्स पे। अगर हम देखेंगे उसके पीछे वुमेंस डिग्री कॉलेज पुलवामा वाक़ा है। अगर हम देखें कि वहाँ से जो स्टूडेंट्स तालीम हासिल करने के लिए आते हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे वहाँ पे वहाँ की बैड स्मेल है। अगर हम देखें बैड स्मेल से बहुत सारी डिजीज़ लाक हो सकती है, और उसके बावजूद वहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो भी जो चलते फिरते जो वहाँ से पेडिस्ट्रियन होते हैं उनको भी बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो पीछे दौड़ते हैं, वो कुत्ते काटने का भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको सामना करना पड़ता है स्ट्रीट डॉग से बचने के लिए। पुलवामा की अगर हम बात करें कि यहाँ पे अभी तक बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अभी रेड्रेसल नहीं हुए हैं। उसमें हमने देखा कि डंपिंग साइट पहले किसी उस साइट में इंस्टॉल होनी चाहिए, उस जहाँ पे जो लोगों की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो। और उसके बावजूद जो अगर हम मेन चीज़ यहाँ के पुलवामा के बारे में बात करें, यहाँ के 5 बजे शाम के बाद यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं मिलती है। अगर हम देखेंगे जो स्टूडेंट्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में या जो बाकी जो मुलाजमीन होते हैं उनको 5 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती है। सो हम चाहते हैं कि ये इशू भी रेड्रेसल हो, और बाकी जो SRTC बसेस का यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं उसमें ये बसें जाती है, लेकिन वो प्रॉपरली जो पैसेंजर्स वहाँ पे है, जो पॉपुलेशन वो कैटर नहीं कर पाती है। उसके बावजूद जो ये है कि हम चाहते हैं कि और भी बसेस इंस्टॉल हो डिफरेंट रूट्स पे जो फार फ्लंग एरियाज़ है या डिफरेंट जो विलेजेस हैं जिसमें कनेक्टिविटी अभी नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट से जो कनेक्ट हो जाए आसानी से। हम चाहते हैं कि SRTC को भी हम RTO से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि SRTC बसेस भी और ज़्यादा यहाँ पे आनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो ट्रैवल और अपनी जगहों पे जो अपनी या चाहे कोई स्टूडेंट है या कोई एम्प्लॉय है वो अपने टाइम पे ही अपने ऑफिस पहुँचे या उनको किसी दुश्वारियों का सामना ना कर पड़े। बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा के बारे में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा पिछले कई मंथ्स से हेडलाइंस में रहा है, पूरे हेडलाइंस में रहा, जिसका हम देखें कि लोग सेटिस्फाई नहीं है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। अगर हम देखें कि बहुत सारी ग्रीवेंसेस आती हैं, मीडिया के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि लोगों के से मिलके भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ये बताया जाता है कि मामूली सा दर्द जो सीवियर कोई डिजीज़ नहीं होती है, 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ट्रांसफ़र शिफ्ट किया जाता है बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। वहाँ की अगर हम बात करें कि रिसेंटली वहाँ पे बहुत सारे वाक़ात पेश आए, तो उसके सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो लोगों को वो सहूलियात कैटर नहीं करते हैं जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें किसी हेल्थ सेक्टर से ये सहूलियात मिलनी चाहिए। सो इसी सिलसिले में बहुत बारी हम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई सॉलिड चेंज या विजिबल चेंज हमें देखने को नहीं मिली। अगर हम देखें कि अगर हमने पहले ही बात की कि ब्यूटिफिकेशन की, जब लोगों को बेसिक सर्विस जो फर्स्ट एड सर्विसेज मुहैया नहीं होगी तो ब्यूटिफिकेशन का कोई मायने नहीं रखेगा। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एड सर्विस होती है, अगर किसी कौम को हमें देखना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे, उसका फर्स्ट एड जो हेल्थ सेक्टर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो लोगों को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए कि लोगों को प्राइवेट सेक्टर या बाकी सेक्टर पे जाना बहुत कम जाना पड़े। सो इसी सिलसिले में जो अभी अगर हम बात करें कि पुलवामा के बारे में, पुलवामा का हेल्थ सेक्टर शैम्बल्स में है। रिसेंटली हमने देखा कि 30 करोड़ की बिल्डिंग वहाँ पे IPD ब्लॉक न्यू कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो अगर हम देखें कि मामूली सा भूचाल, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा जो गाइडलाइंस है कि बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सालों पहले आई है कि आप अर्थक्वेक जो टॉलरेट कर सकते वैसा स्ट्रक्चर आप बनाएं। हमने देखा मामूली से भूचाल ने उसमें कितनी क्रैक्स उसमें पड़े हैं उस बिल्डिंग में।
जिससे हम देखेंगे कि आने वाले कल में उससे यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, यहाँ के बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर मुझे लगता है कि अगर और एक ऐसा कोई इर्द-गिर्द आएगा तो वो बिल्डिंग मुझे लगता है कि सेफ़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो भी इसमें गौर-खोज करे और चेक करे कि क्या ये बिल्डिंग सेफ़ है, और ये वो लाहक करे, ये वो आवाम के सामने लाए कि कल को अगर कोई डिज़ास्टर आए पेशेंट्स को रहना इनमें सेफ़ है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि हमें चाहिए कि लोगों का भी एक रोल है इसमें कि वो भी आगे आ गए, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे कि जो ग्रीवेंसेस है। हमने देखा कि बहुत बार यहाँ पे प्रोग्राम्स हुए, माई टाउन माई प्राउड हुआ, बैक टू विलेज हुए, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ही लोगों के पास आई और उनकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल किया, उनकी ग्रीवेंसेस सुनी। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा इनिशिएटिव है। हम देखते हैं कि ये इस बार अचीवमेंट है। हम देख रहे थे कि जो शिफ्ट हुआ, हम कुछ और मांग रहे थे और आज लोग डेवलपमेंट के पीछे है। ये है कि अब 3 सालों में 4 सालों में कि हम प्रॉपरली ये एक्सपेक्ट हमें नहीं करते कि प्रॉपरली यहाँ पे डेवलप होगा। डेवलपमेंट में टाइम लगता है, लेकिन अब ये चीज़ है कि लोगों में एक ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि वो भी ये रिस्पॉन्सिबल समझे कि हमारे पे में भी कुछ चीज़ें लायक होती है कि हम कैसे अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं जो CCI के प्रेसिडेंट है पुलवामा से, फयाज़ अहमद वानी, और जाने माने बिजनेसमैन भी है पुलवामा से। तो इनसे भी जानेंगे जो पुलवामा ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम था कितना वो सक्सेस रहा है और मज़ीद उस पर क्या करने की ज़रूरत है। तो फयाज़ साहब, गुलिस्तान में आपका खैर मकदम है। ये बताइए कि जो पुलवामा ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम था कितना सक्सेस रहा है और कौन से ऐसे काम हैं जो हुए हैं और जो अभी भी पेंडिंग है कुछ काम, तो इसके बारे में क्या कहें? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया है। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से मैं इतना ही बता दूंगा आपको कि जो पुलवामा में काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि जो कुछ काम हो रहे थे, जैसे फुटपाथ की बात है, ये भी ब्यूटिफिकेशन के अंदर ही आता है। फुटपाथ तो बना दिया गया, एक्सचेकर से पैसे भी निकाले गए, लेकिन अगर फुटपाथ का बुनियादी इस्तेमाल हम अगर उसकी बात करेंगे ना, तो ये लोगों की आमद रफ्त के लिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे बताना पड़ रहा है कि इसको लोगों के आमद रफ्त के काबिल नहीं बनाया गया। वेंडर्स ने उसको ऑक्यूपाई करके लोगों को और भी मुसीबत और मुश्किलात में डाला है। दूसरी बात, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे ये बावर कराना चाहूँगा कि यहाँ पे एक माफिया है, जो ये ऑटो वाले तबका है, ऑटो वाले हजरात हैं। हमें नहीं पता किन किन इलाकों से आते हैं और रोड को ऑक्यूपाई करते हैं, जिससे ट्रैफिक जामिंग का ज़्यादा खतरा रहता है। जबकि आपको पता है पुलवामा में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वो जो मेन जनरल बस स्टैंड था उसको शिफ्ट किया गया और बहाना बनाया गया कि इससे ट्रैफिक जामिंग हो रही है। मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि जब से वो बस स्टैंड शिफ्ट हुआ है तो ट्रैफिक जामिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क इसलिए महसूस नहीं हुई, आपने तो स्टैंड को शिफ्ट किया, लेकिन जो ऑटो वाले हजरात हैं वो उसी रोड पे ऑटो खड़ा करके अपने सामान की बिक्री करते हैं। जो पीछे बेचारे दुकानदार हजरात बैठे होते हैं, जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए का सरमाया लगाया अपने दुकानों के अंदर, वो तमाशा बीन बने रहते हैं। यहाँ पे मैं अपने हुकाम से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से मुदबाना अपील करूँगा कि अगर उनको सीरियसली पुलवामा में वाकई तौर पर एक ब्यूटिफिकेशन को कायम रखना है, अभी हाल में स्ट्रीट लाइट्स भी लगा दी गई है, लेकिन आपने खुद अपने आंखों से देखा होगा कि उनकी रोशनी नीचे तक आती नहीं है। जहाँ पे 200 वाट का बल्ब ज़रूरत है वहाँ आपने 50 वाट लगा दिया, तो वो रोशनी कहाँ से आएगी? इसमें लोगों को सीरियसली सोचना पड़ेगा, टेक्निकल आस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखना पड़ेगा और उनको एक्सपर्ट लोगों से बात करनी होगी कि इसमें कौन से लाइट्स अच्छी रहेगी। बाकी जो धोबी कली का हमने मसला उठाया था कि जो मेन स्ट्रीम जा रही है पुलवामा टाउन के बीचों बीच से, उसको खूबसूरत बनाया जाए। दुनिया के अंदर बहुत सारे खूबसूरत शहर बसे हैं बिल्कुल जो नदियों के राइट एंड लेफ्ट में, लेकिन यहाँ पे भी मुझे नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई सीरियस इनिशिएटिव ले रही है उसको खूबसूरत बनाने में। अब खूबसूरती बात तो दूर की बात रही है, अगर उसको अब साफ़ ही करते, मतलब टाइमली मैनर्स में, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना होती और बीमारी फैलने का ख़तरा नहीं रहता। तीसरा अहम पॉइंट है मेरा, जो बस स्टैंड के अंदर ये शेड्स बना दिए गए, आप खुद अंदर जाके देखेंगे जो भी लोग वहाँ पे उसको एज ए यूरिनल इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन को क्या आप किसी भी वक्त बस स्टैंड के अंदर जाओ, वहाँ पे इतनी बदबू फैली है तो उससे बीमारियां फैलने का खतरा है। अभी गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मुदबाना गुजारिश करूंगा कि वहाँ पे जो पीछे वो गार्बेज डंपिंग साइड भी रखी है उसको भी हटा दिया जाए, ताकि लोग कुत्तों के काटने से महफूज रहे। और बार बार हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि जो आउटर सर्कल रोड पे कुछ गार्बेज डंपिंग साइट्स बनाए गए उनको शिफ्ट किया जाए, ताकि लोगों को
घूमने फिरने में वहाँ पे दिक्कत ना हो। और वहाँ पे साथ ही में एक वुमेंस कॉलेज भी है हमारा, वहाँ पे हमारी बच्चियाँ पढ़ती है, हमारी बेटियाँ पढ़ती हैं, उनको भी खतरा रहता है डॉग बाइट्स का। हुकाम से हमारी यही उम्मीद रहेगी कि वो पुलवामा को जायज़ुल नज़र बनाने में अपना पूरा ताउन देंगे, जैसे हम ट्रेडर्स हर वक्त उनको अपना ताउन देते रहेंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा इस ग्राउंड रिपोर्ट के शुमारे में, आपने देखा जो पुलवामा ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम था वो किस हद तक कामयाब हुआ है। लेकिन वही जो ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं या जो आम लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट से, खासकर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम था, स्ट्रीट लाइट्स का प्रोग्राम था, या जो फुटपाथ था, वो अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं। हाँ, कुछ हद तक उस पर काम हुआ है लेकिन मुकम्मल नहीं हुए हैं। खासकर जो यहाँ पर फुटपाथ बनाए गए हैं उसको ऑक्यूपाई किया गया है वेंडर्स के जानिब से। तो अब जो लोग हैं उनका सरकार से ये मुतालबा है कि जो बाकी प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं उनको भी मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।